Hello students. Before I start with this chapter, dual nature of matter and radiation, I strongly urge you to please make a note of important points during my explanation. That is, it should be in your own handwriting. I have written highlighting points here. The explanation details I'll be telling in my address, which you will be writing down. That will be your full set of notes for this particular chapter. Here we'll be studying about dual nature of radiation first. Now, dual nature of radiation means it has got two natures. One is wave, second is particle. Wave nature deals with reflection, refraction, interference, diffraction, many such phenomena. The particle nature deals with the photon. Particle of light is called as photon. We know energy of one photon is E equal to h nu, where h is a Planck's constant and nu is the frequency of the incident radiation. Now this photon, how this photon when made incident on a metal surface ejects electrons out of it, that is what is called as photoelectric effect. And we are going to study here in dual nature of radiation about this photon mainly. But before we go for this photoelectric effect, let us understand some terms related with it. Jaise intensity of light. I in my explanation here means intensity of light and not the electric current. I here is intensity of light. By intensity, what do we mean, students? It means total number of photons. Ultimately, intensity leads to how many total number of photons are available in the stream of light. That is called as intensity. Now, intensity of light is what we are going to study here. But in general, you remember intensity ka formula is energy E upon area into time. So intensity in general for light, sound, heat is always energy upon area into time. Energy you will be taking respectively. If you want light intensity, you take E as light energy. If you want sound intensity, you take E as sound energy. And for heat intensity, you take this E as heat energy. But E upon AT is called as intensity here of light. Now E is NH nu. What is NH nu? N is the number of photons. Make sure that you are writing down these meanings of the symbols, because they will be necessary and they will be time and again repeated during my explanation. So N is the number of photons. H nu is the energy of one photon according to Max Planck's quantum theory, which says photon is a packet, is a bundle, a quanta of energy. This packet of energy, quanta, photon, has energy h nu. ऐसे n photons रहेंगे तो nh nu. So total energy of that stream will be nh nu. But if it is made incident on a surface of area A for the time t, then the intensity can be calculated as nh nu upon at. In this formula, h is a Planck's constant. The value, we know Planck's constant is 6.63 10 raised to minus 34 joule second. जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है, और वो होता है E, that is the charge of electron. If you divide this value by that E, 1.6 into 10 raised to minus 19, then this value, which is in joule second, gets converted into electron volt second, and the value of H is 4.14 10 raised to minus 15 electron volt second. In this chapter, in this article, we'll be mainly requiring the values of energy in electron volt, because they are subatomic energies and they are of the order 10 raised to minus 19 joule. So it's always better, students, to convert these energies into electron volt. And hence, for all the calculations of these energies, we'll be using H ka value as electron volt second with this number. One more factor you will be requiring, that is product H with C. That is Hc. C is the speed of light. We know it is 3 into 10 raised to 8. H is this value. If you multiply these two, approximately it comes as 20. Exactly it is 19.89, but it is rounded off to 20 into power 10 raised to minus 26. Joule meter, again joule में मिला. अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, divide by E, and then this Hc when divided by E and powers adjusted, it becomes 12420. Hc का वैल्यू 12420 ऐसे याद रखना है. Hc का वैल्यू क्या है? 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंग स्ट्रॉम. आपको मोस्टली ये दो वैल्यूज ज्यादा करके लगेंगे.
इसीलिए मैं उनको एच सर्कल या राउंड यहाँ पे कर रहा हूँ. एक है HC और दूसरा है ये H. In electron volt, their values are absolutely essential. After this, you should also know mass of the electron, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Charge of electron is very well versed, 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. So HC, H, mass of electron, charge of electron. What is the meaning of intensity? Now what is the meaning of frequency? Frequency means number of photons in 1 second. See, there is a difference between intensity and frequency. Frequency is 1 second में कितने photons, और intensity means 1 second में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितने photons आ रहे हैं. So both seems to be very close, but they are different. Frequency basically relates with the speed, and intensity basically relates with the energy. Therefore, intensity and frequency, please remember this difference. Now, generally we'll be taking all these energies in electron volt. So electron volt to joule का conversion factor भी आपको पता होना चाहिए, जो है 1.6 10 raised to minus 19 joule. After that, we will be coming across many different wavelengths of light. The source of light from where it is incident on this metal surface. This is going to be a monochromatic source. Monochromatic मतलब single chroma, माने single color, माने single wavelength. तो ये एक ही wavelength का light है. तो ऐसे कितने सारे wavelengths हो सकते हैं? Visible light में वो होते हैं Vibgyor, and the range is 4000 angstrom to 8000 angstrom. You'll be requiring this for the light to be made incident on this metal surface. अच्छा, कौन सा light exactly incident कराना है? वो depend करता है metal surface पे. अभी ये metal surface, as Hertz found in his experiments, that whenever ultraviolet radiations are made incident on metal surface, there are voltage sparks. Now voltage sparks means what? This spark is actually the charge trying to flow through the air. So there accidentally Hertz invented the photoelectric effect. But then it matters कि कौन से metal पे कौन सा radiation incident करना है. अगर आप जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसे मेटल्स लेते हो तो वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ही लगेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटल से बाहर निकालना है तो. लेकिन अगर आप अल्कली मेटल्स लेते हो, इफ यू टेक अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन केवल एक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली वन, व्हिच कैन बी इजीली डिटैच्ड विद अ लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन इवन द विजिबल लाइट लाइक दिस is sufficient to make these electrons come out of it. Therefore, it matters which metal cathode you are taking in this discharge tube. See, now I am starting with the photoelectric effect. It has a discharge tube with cathode and anode, negative and positive charges properly biased, connected to the source. There is a quartz window through which light is made incident, monochromatic light, single frequency, single wavelength light is incident. Once it is made incident, depending on the frequency, the suitable frequency, electrons are coming out. Now, these electrons will not come out for any frequency of the incident light. They will come out only for that frequency of incident light which is greater than a certain cutoff or a threshold value. And that value is called as threshold frequency. जैसे अपने admissions के time पे cutoff होता है 90% and above there is admission, 90% and below no admission. वैसा ही यहाँ पे frequency का एक कट ऑफ वैल्यू होता है हर एक मेटल के लिए. सपोज इस मेटल के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 4 into 10 raised to 14 हर्ट्ज. मतलब अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी 4 into 10 raised to 14 हर्ट्ज से कम है तो इंसिडेंट लाइट आने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा. अगर 4 into 10 raised to 14 हर्ट्ज जो इस मेटल का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आया तो ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट होंगे. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो इन फोटॉन्स की वजह से बाहर आते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर सेट अप अ करंट. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें टोटल 3 एनर्जीज है स्टूडेंट्स. पहला एनर्जी ऑफ दिस इंसिडेंट फोटोन दैट इज ई. E. इस E के 2 फॉर्मूला पॉसिबल है. एनर्जी ऑफ फोटोन वी नो इट इज h nu and h c by lambda. When this energy is incident on this metal surface, to remove or eject an electron from the metal surface, some part of this energy is wasted or consumed, and that is called as phi naught.
इस फाई नॉट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन. So what is work function? It is that minimum amount of energy which is required to eject an electron from this metal surface. इसके भी दो फार्मूला हो सकते हैं, एक है h nu naught, दूसरा हो सकता है hc by lam naught. What am I doing? I am substituting nu by c by lam. Nu naught c by lam naught. We know this formula. We have done this. Frequency is velocity of light upon wavelength. यहाँ पे भी वही किया. एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, once they are out of this metal surface, they will move with some energy, and that energy is called as kinetic energy. I am putting it as maximum kinetic energy because the minimum part is invested or wasted, consumed to eject an electron. Therefore, maximum kinetic energy is given by half mv square, the standard formula of kinetic energy. But this can also be given by one more formula, that is E into V naught, where E is the charge of one electron and V naught is the potential. We further call it as stopping potential. That I'll explain in the further part of this chapter. In our discussion so far, we have found that this photon with energy E, when incident on a metal surface, utilizes this energy in two ways. One, to eject an electron from the metal surface. Second, to move that electron in the discharge tube and setting up a current in the external circuit. तो ऐसा फोटोन का ये एनर्जी दो तरीके से यूज हुआ है. E is equal to phi naught plus K max. अब ये जो E है, ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है जो आ रहा है. ये phi naught जो है, ये किसका प्रॉपर्टी है? तो ये phi naught है, ये इस एमीटर का, कैथोड का प्रॉपर्टी है. कैथोड को हम लोग एमीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक फोटो सेंसिटिव मेटल है जहाँ से फोटो माने लाइट आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इसलिए उसको एमीटर भी बोलते हैं. तो फाई नॉट इस कैथोड का प्रॉपर्टी है. एनर्जी ई इस फोटोन का वैल्यू है. के मैक्स इन इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू है जो यहाँ से बाहर आ रहा है. फोटो इलेक्ट्रॉन्स का के मैक्स है. उसी तरीके से ये जो एनोड है, इसका भी एक पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं और उस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं V नॉट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. देखो ये पूरे डिस्कशन में अभी तक ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सेट होने के बाद करंट किस तरीके से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने के बाद करंट कैसे फ्लो होगा. इसको हम लोग बोलेंगे फोटो करंट आफ्टर फोटो एमिशन. लेकिन अगर इस करंट को स्टॉप करना है तो क्या प्रोविजन है? तो हम लोग इस एनोड को करेंगे नेगेटिव. एनोड जनरली पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आप उसी एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देते हो तो ये एनोड जिसका काम है कलेक्ट करना, कलेक्टर है, वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करता है. अगर आप इसी को नेगेटिव कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रादर रिपेल करेगा, करंट सेट नहीं होगा, लेकिन वो एक सर्टेन पोटेंशियल पे ही हो सकता है. उस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद करंट स्टॉप हो जाएगा. अभी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है टोटली के मैक्स पे. कैसे? उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. देखो टोटल एनर्जी इज फाई नॉट प्लस के मैक्स. सो एनर्जी ऑफ फोटोन E को अगर मैं लेता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हुआ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा उनको मूव करने के लिए. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये तो कांस्टेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कांस्टेंट है. तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो है तुम्हारा के मैक्स. मतलब ये के मैक्स जो है वो डिपेंड करेगा इस एनर्जी पे, ना कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, क्योंकि वो तो फाई नॉट है, वो वर्क फंक्शन है. जब तक ये मेटल आप कांस्टेंट रखते हो, इस कैथोड को चेंज नहीं करते हो, तब तक ये चेंज नहीं होगा. तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो के मैक्स है ये किस पे डिपेंड करेगा? इस वैल्यू पे. मतलब अगर मैं इसको 20 डबल कर दूं तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये 2 का 2 ही है, तो ये कितना बचेगा? अभी 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. मैंने इस एनर्जी को डबल किया, ये कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा हुआ. अगर मैं इसको ट्रिपल कर दूं 30, ये 2 का 2 ही रहेगा, तो ये बनेगा 28. पहले 8 था, अभी 28 हो गया. मतलब एनर्जी को ट्रिपल किया तो काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल से ज्यादा हुआ. सो इफ यू मेक दिस एनर्जी डबल, काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन डबल.
triple, so kinetic energy is more than triple. So in general, if this is made n times, kinetic energy will be more than n times. This kinetic energy decides the value of stopping potential. क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. अच्छा, ये बार बार मैं इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये काइनेटिक एनर्जी इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का है. इस कैथोड के अंदर ऐसे अलग अलग लेयर्स हैं, लेवल्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेवल्स. अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालूं, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालूं और इनर मोस्ट को निकालूं, तो इन तीनों को 1 2 3 ऐसे मैंने नंबर्स दिए हैं. किसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा इजेक्ट करने के लिए? तो वो लगेगा 3 को, क्योंकि वो सबसे अंदर है. इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, देयरफॉर इसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग सबसे ज्यादा है. इसको बाहर निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च हुआ, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हुआ तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट में है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बचा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो उसको 2 से ज्यादा एनर्जी लगेगा. रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये फाइव नॉट सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है. जैसे जैसे आप अंदर के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का ट्राई करेंगे, वैसे इस फाइव नॉट का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा और के मैक्स कम कम होते जाएगा. लेकिन हमारे सारे कैलकुलेशंस सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसलिए के हमेशा मैक्सिमम ही आपको दिया जाएगा. लेकिन मैं सेफर साइड आपको ये बोल के रखता हूँ कि अगर जैसे जैसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालेंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी कम कम होते जाएगा. सो सपोज इसके लिए काइनेटिक एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला सबसे पीछे रहेगा, ये 7 वाला थोड़ा आगे रहेगा, 8 वाला सबसे आगे रहेगा. अभी हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात कर रहे हैं. अगर सामने से मैंने 8 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, 8 वोल्ट, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रुक जाएंगे. लेकिन अगर मैं 7 वोल्ट या 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल लगाता हूँ, इस एनोड को अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूँ 6 वोल्ट का, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा. लेकिन ये दूसरा और ये पहला इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस करके जाएगा, करंट सेट होगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा. तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा किसके बराबर देना है? के मैक्स के बराबर आपको देना है. सो के मैक्स इज ऑलवेज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू स्टॉपिंग potential, so that is V naught. Hence what have I written here? Check, V naught is K max upon E. मतलब stopping potential in volt and kinetic energy in electron volt are same values. For example, अगर kinetic energy का value है 8 electron volt, तो stopping potential रहेगा 8 volt. kinetic energy का value है 7 electron volt maximum value, तो आपका stopping potential रहेगा 7 volt. जितना के मैक्स का वैल्यू है वही वैल्यू आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का रहेगा, लेकिन यूनिट अलग रहेगा. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है. फ्रॉम द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वी कैन गेट के मैक्स एज h nu minus h nu naught. इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट के मैक्स एज E into V naught, h nu minus, अच्छा h nu naught is what? Phi naught. So E V naught is this. So if I divide this E on the right side, so what I get is V naught is h nu upon E minus phi naught upon E. Remember one thing, whenever you are dividing any energy by E, then that energy gets converted into electron volt. अभी यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? ये अगर मैं V naught का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, V naught को लेता हूँ y एक्सिस पे, न्यू फ्रीक्वेंसी को लेता हूँ x एक्सिस पे, तो मेरा इक्वेशन कौन से टाइप का बन गया? y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो आप देखो ये c माने y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? वर्क फंक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्राफ ऑफ V naught वर्सेस फ्रीक्वेंसी. अच्छा, V naught वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज सेम एज, यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ, K max versus frequency. I can write it as V naught versus frequency or K max versus frequency. Graph will be same, but there is one condition, above mu naught, threshold frequency के ऊपर ही ये ग्राफ वैलिड रहेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे तो इजेक्शन ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा?
इसीलिए अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे इलेक्ट्रॉन्स जब भी बाहर आ रहे हैं तो उनका एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे आएगा. नाउ y axis you have v naught, so v naught is on y axis. on x axis you have frequency, so x की जगह पे frequency आ गया. और अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये y axis को यहाँ पे कट करेगा नेगेटिव साइड में, and that is y intercept which is now equal to phi naught. Phi naught is work function but in electron volt. So I get this equation plotted here in this way. So from this graph we get two things. First, that इस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट है वो है वर्क फंक्शन, और इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालने जाओ, स्लोप, then it is always Planck's constant. Again Planck's constant in electron volt, मतलब ये वाला वैल्यू. So this is a very very important graph which gives you two results, y intercept and slope. And for this graph I have these three results which says kinetic energy is directly proportional to frequency, stopping potential is directly proportional to frequency. इसका मतलब Vmax square is also directly proportional to frequency. So velocity भी वही directly proportional है because velocity already Ke max के फॉर्मूला में है. लेकिन ये तीनों एक कॉमन कंडीशन में होता है, वो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी nu should be greater than threshold frequency nu naught. Please make sure students that you are writing down the meanings of the symbols. Nu is an incident frequency and nu naught is a threshold frequency. इस कैथोड का, इस फोटो सेंसिटिव मेटल का रिक्वायरमेंट है वो फ्रीक्वेंसी. So under this condition, if you plot this graph, you get these results. From the second characteristic of photoelectric effect, we get photo current is directly proportional to the intensity. जितना इस लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, बिकॉज ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है. एक फोटोन एक बार एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो जितने फोटॉन्स ज्यादा रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर निकलेंगे, उतना ज्यादा करंट सेट होगा. मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. आई रिपीट, आई हियर इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट and IP here is photo current. So IP is proportional to I, मतलब number of photoelectrons is proportional to I intensity, directly proportional है. So I get a graph which is passing through origin. Here it is directly proportional but after nu naught, इसीलिए ये भी straight line ही है, लेकिन nu naught से start होने वाला straight line. अभी इसके बाद हम लोग को दो और ग्राफ देखने हैं, वो है current versus voltage, current versus voltage, but under two different conditions. पहला कंडीशन है जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे और इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे. दूसरे में इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे. अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा, इस नंबर से आपको जल्दी समझेगा. अगर मैं इस इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, देखो E का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, h न्यू. अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को डबल करता हूँ, h तो कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो E भी डबल हो गया. मतलब मैंने यहाँ पे 10 का जो 20 किया, E का वैल्यू अगर डबल हुआ तो इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है, डबल. लेकिन इसका ये भी मतलब है कि वेवलेंथ हाफ हुआ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर आप इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी डबल करते हो या वेवलेंथ हाफ करते हो तो एनर्जी डबल हो जाता है. ये एनर्जी जो डबल हो गया ये किसके अकॉर्डिंग्स में हुआ, फ्रीक्वेंसी के. लेकिन आप देखो फ्रीक्वेंसी को जैसे आपने चेंज किया, एनर्जी चेंज हुआ, लेकिन वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ. तो क्या चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ. काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर न्यूमेरिकली सेम. उनके यूनिट्स अलग है, नंबर्स सेम रहेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना जरूरी है. सो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, यानी फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज किया, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा. इसलिए आप देखो इस ग्राफ में, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल. किसको देते हैं ये नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड को देते हैं. तभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एनर्जी फोटोन का प्रॉपर्टी है, ये फाई नॉट इस कैथोड, इस मेटल का प्रॉपर्टी है, फोटो सेंसिटिव मेटल का. ये Ke max इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी है. वैसे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इस एनोड का प्रॉपर्टी है. ये चार जो आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, आपको MCQs में काम आएगा. That way you can answer your MCQs like this. So if you change the frequency, frequency अगर आपने बदली, देखो frequency अगर बदली तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी बदलेगा. यहाँ पे हम लोग करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ देख रहे हैं.
मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब यहाँ पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो इफ यू चेंज फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल चेंज इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी में बढ़ाते गया हूँ यहाँ पे. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये एनर्जी बढ़ा, ये एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो भी बढ़ते जाएगा. तो इस तरीके से विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस. यू कैन प्लीज ऑब्जर्व स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है एनोड को दिया हुआ. एनोड जनरली पॉजिटिव होता है लेकिन स्टॉप करने के लिए एनोड को हम लोग उल्टा करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल कर देते हैं उस टाइम पे. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है. लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ है, इंटेंसिटी के साथ नहीं है. फोटो करंट का रिलेशन सिर्फ इंटेंसिटी के साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो यू विल ऑब्जर्व कि देखो ये करंट बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जा रहा है. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको सबके लिए एक ही मिलेगा क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. सी फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट so stopping potential is constant. Frequency is increasing so stopping potential is increasing. Intensity is increasing so current is increasing. Intensity is constant so you see there is only one value of current. यहाँ पे current का एक ही वैल्यू मिला. तो इस तरीके से ये पूरे चैप्टर का समरी हो गया कि फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है. काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम वेलोसिटी. इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड कर रहा है? फोटो करंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. ये 5 टर्म्स भी आपने याद रख लिए और इनके ग्राफ यू कैन आंसर मेनी MCQs जस्ट लाइक दैट. सो फ्रॉम दिस एंटायर डिस्कशन आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर पार्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. अभी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपने, जो मेरे एक्सप्लेनेशन में आ चुका है, वो अपने अपने रिटन नोट्स में लिखना है और उसके बाद जो सेट ऑफ MCQs मैं आपको दूंगा आपने सॉल्व करना है. आई अश्योर यू आफ्टर दिस डिटेल्ड स्टडी एंड प्रिपरेशन से मेरा मतलब है आप इसका सिनॉप्सिस बनाने के बाद, मतलब एक फुल स्केप पे प्रॉपर लिख के होने के बाद उसको लर्न करो, फिर उसको रिकॉल करो और उसको फिर से एक बार लिखो, याद करके लिखो और फिर MCQ सॉल्व करना शुरू करो. यू विल नोटिस अ बिग डिफरेंस इन योर अप्रोच. हाँ, एक जगह पे आपको हेल्प लगेगा वो है कैलकुलेशंस. दैट आई विल बी पुटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर योर calculations in MCQs. But study this well and write this in an organized manner and in detail. This is the end of dual nature of radiation. Next we'll be doing with dual nature of matter.